So this is my second podcast. So I started my journey with the bureaucrats. So I'm trying to get into this industry also, or rather this profession, to know more about it. So you are one of the senior most person. I'm really glad to have time with you. How you molded yourself from defense and now to mainstream medicines? I'm surprised that you are telling mainstream medicine. Army hospitals are at least, army medical services are at least a decade ahead of this any institution in this country. The reason is very simple. When the British went from this country, so the first hospitals were army hospital. So they had all the advantages. Like I'll tell you, you may not be knowing that when British went, there were about 200 hospitals, army hospitals. They left because they made these hospitals for whom? They made for themselves, for their family. So they were very high standard. So their doctors were very high standard, their nurses were very high standard, equipments. So when in this country there was nothing, army had everything. So, and plus those who were soldiers, of course, they looked after those soldiers also. So army hospital had been always. So in fact, when I came to the mainstream, in fact, I always feel so many things can be copied from army to improve these institutions, those who are in civil institution. In any case, army was a great job. For 35 years I worked. In fact, I went from civil. I was studying in a small medical college, Rewa. My father died and I was looking for a Naukri, basically. So the first advertisement came from army and there was Sainik school in Rewa. So I had little association. So I joined army. I never thought one day I'll become the chief of medical services of Indian Army. That is called Director General. So I retired as a Director General. In between, I joined as MBBS. I did my MD. There is a specialization. Then DM. That is a super specialization. So MD in medicine and super specialty. That is a DM in rheumatology and immunology. Now, rheumatologists and immunologists are very few in this country. In fact, when I joined, I was one of the few first in the country. So everybody was laughing. Look, there's a cardiology, there is a nephrology. Have you become mad to join this specialty which is not heard? Nobody knew what is rheumatology, what is immunology. Now, there's a big rush to join rheumatology and immunology. More toppers are trying to get into this. So I became a rheumatologist and I studied those diseases called immunological autoimmune diseases, which in fact I also didn't know much about these. So that is how I grew in army from a normal doctor, MBBS doctor, who was in the field area like Nagaland, Mizoram, with the infantry, walking for many kilometers, fighting with those so-called insurgent with them, because if they are walking infantry people, where the bullet doesn't see that you are a doctor or non-doctor, if you have the equal chance of, so those risks are there. So I was with them first, then gradually I became a specialist. So my area of operation became only little larger hospital like Jabalpur, Allahabad. Then I became super specialist. Then my area of operation only was a bigger places like Delhi, Pune, Calcutta, Mumbai, Bangalore. So most of the time I spend in Delhi and Lucknow as a super specialist. And in between I was a specialist, so I was posted at different places. In between I did little administration, so I was the boss of a hospital in Guwahati. That is the... and when I became, look, if you are a specialist, every time you are seeing patient, most of the, you will take me as a doctor. But suddenly, one day I became brigadier and they posted me into a hospital in Guwahati, which is about a 700-bedded hospital. I was the boss of that hospital, which they call commandant of the hospital, like chairman, director, whatever you call it. So I was chairman of that hospital, and as a chairman, you have to practice a lot of things like disaster management and all those issues, So we were practicing every Saturday disaster. If there's a disaster occur, then what we'll do.
Most of the time it was a theoretical drill. I was very bored because I had gone from Delhi and I always thought, मैं कहाँ फंस गया है, ये तो रोज ही होता रहता है कि ये वो. One day disaster occurred in Guwahati where there was a bomb blast, serial bomb blast, 10 bomb blast. 200 people died on the spot. And 100 casualty. The person who was in Guwahati that time, they were launching a ambulance services, some 202 or something 102. And the fleet commander was an ex-army. He didn't know much about Guwahati. He only knew army hospital. Okay. So he brought those 100 ambulances were there. So he put all the casualty and brought to army hospital. Okay. They were civil casualty. I was also new administrator. I didn't know whom to ask and all. I said, okay, we were as it is prepared for the disaster. So we did such a great, marvelous job. And who's the witness is the present chief minister of Guwahati, of Assam. Hemant Biswa Sharma ji. He was health minister. He was in opposite party, Congress that time. And he came, the chief minister was Gogai Sahab. He also came. So I was brigadier that time. So they were very, very impressed. They said, how you manage? Because there were 100 casualty, only one died. While they had sent 100 casualty to some other hospital. They all died. So there was a difference. Then I said, look, even I didn't know the power of training. If you do daily anything, you become more powerful. So we were doing daily training. The moment those 100 patients came, first thing, we had 100 bed always vacant for the casualty. So that only army can afford. Nobody can afford 100 bed. 100 bed means a lot of money and out of. So 100 bed were khali. So immediately patient were taken. Secondly, every bed has already a drip and everything ready. Moment patient came, the drip is there. Then we had a very modern blood bank and surgeons. They were all ready. So we could do everything. And our surgeons are better in trauma care and responsibility and no practice, no private practice, and also nobody is in hurry to go. So whole day, whole night we worked and saved all the patients except one died. So they were very happy. In fact, the present chief minister, he called me into his office, so I went that time and I saw his office in ministry. So we were exchanging how you work, and also I told, look, I am basically an autoimmune disease expert, but I am posted here as a boss of the hospital. So I also learned, and because of this, that time General V.K. Singh was the army commander, so they chose our hospital as one of the best hospital. They called us unit citation, so they gave me and I got Visis Seva medal, VSM. That is again by General V.K. Singh, so that is the army chief gives it, but on his approval. And later on, of course, I got PVSM, Param Visis Seva medal. This photograph which you are seeing, and this is the president, Pranab Mukherjee sahab. So that is how the journey of the army I can summarize. But by and large, if you really ask me, I became the Director General, #1 post of my organization, which anybody who joins service, he wants to become. That was a different experience, because once you sit on that chair, suddenly you realize you were so scared of this chair all along your whole life. I still remember I was in Calcutta when the DG rang up. I was that time probably a junior. I stood from the chair. I was sleeping, in fact. So I stood up. So my wife told me, why you standing? He's not seeing you. He's in Delhi. So that was the aura of that chair. So I sat down in that chair. तो आपको अच्छा लगता है जब आप हाईएस्ट चेयर पे पहुंच जाते हो, दैट आप जो बोलते हो वो होता है. आप न्याय भी कर सकते हो, अन्याय भी कर सकते हो. तो फिर आप जब न्याय करते हो तो अच्छा लगता है आपको कि भाई जो आपने बहुत दिनों तक सर्विस में देखा है कि ये अन्याय होता है, you want to correct those. So I corrected those things. Like when I became boss, I realized that my it's called OSD. Okay. He becomes very powerful. He stops people meeting. So I put a camera on him. I said, look, anybody coming to meet me he's not coming to meet you. You are just a facilitator. If suppose it becomes 5 o'clock and my time is up, then you will come with me to my house, taking all these people. You arrange the vehicle for them.
they'll come to my house and we'll keep sitting till whether 11 o'clock, 12 o'clock, but same day we'll finish the job. Anybody, if he has come to my office, India is a big country, people are coming from Guwahati, Chennai, Srinagar, and they come to meet Director General. It's not that now the time is up, he's going. I say no, there's no time for DG. He has to sort out the matter same day. So that was I was happy also I could sort out few problems. I could not sort out every problem. Nobody can sort out. But I try my best, whatever I could do for the administration. Look, problems are same everywhere. People wants that some injustice has been done on posting, some injustice has been done on promotion. Somebody is a surgeon, but he's not posted as a surgeon. Somebody wants a good posting. Somebody wants to teacher. Somebody wants to become professor. All those issues are there. Such a large organization, Indian Army has a officer strength of almost a huge strength of almost about 5,000-6,000 doctors, about 20,000 nurses, 50,000 other ranks. So it's a big organization. So when I was heading that organization, I realized, yes, once you sit on that chair, then you have to take the responsibility. A responsibility of one thing, that you have to deliver the justice. Most important is justice. If you can deliver that anywhere, if you are a boss, you must proactively feel that where the injustice is done. Sometime किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा, ये आपको पता लगाना पड़ेगा. जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग रात में पता लगाते थे कौन भूखा है, किसके पास कंबल नहीं है. वो तो अभी नहीं आजकल सिस्टम, बट राजा को हमेशा ये सिस्टम बनाना चाहिए कि किसके साथ अन्याय हो रहा है. वो फीडबैक आपको मिलना चाहिए. नॉर्मली क्या होता है, जो राजा को वो फीडबैक मिलना बंद हो जाता है. जो उसके चारों तरफ लोग होते हैं उसके साथ अच्छी बात बताते हैं, खराब बात नहीं बताते. तो ऐसा आदमी भी होना चाहिए जो आपको खराब बात बता सके कि सर देखिए, आप जो ये वाइट शर्ट पहनते हैं अच्छी नहीं लगती, रोज़ कुछ और पहना कीजिए. मतलब समथिंग, कोई आदमी आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी होना चाहिए, है ना. सर आपने दो पर्सपेक्टिव बताया, योर लाइफ इन आर्मी एंड अभी करेंटली जो चीज़ आपके साथ चल रहा है. मेरा मेन रीज़न यही था वो मेन स्ट्रीम और डिफेंस बोलने का कि आई हैव सीन द पीपल फ्रॉम द डिफेंस, यू आर मोर एक्सपीरियंस, आई शुड से इट लाइक दैट, बट पीपल फ्रॉम द फोर्सेज आर ऑलवेज पॉजिटिव माइंडेड. बट जब आप यहाँ बैठते हो, हम जैसे सिविलियंस आते हैं, we sometimes break down very easily in the initial stages. वो डिफरेंस को आप कैसे लेते हो? देखिए, है तो दोनों सब एक सी ऑर्गेनाइजेशन, बट यू आर पुट इट राइटली. क्या होता है आर्मी में, यू बिकम पॉजिटिव बिकॉज यू आर टॉट टू बिकम पॉजिटिव. इनिशियली शुरू में आपको लगता है कि यार ये क्या ट्रेनिंग है, बट धीरे धीरे वो आपकी आदत में आ जाता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, कई बार आप देखते हैं ना कि यार हम जब कहीं आर्मी उसमें जाते हैं तो सब लोग सैल्यूट करते हैं. तो कोई बचपन से थोड़ी कर रहा था, उसको सिखाया गया है. तो शुरू में सिखाया जाता है, फिर वो आदत में आ जाता है. ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड भी है. जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाइए हमारी कंट्री में, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमारे कंट्री में कल्चर है कि वो कहते हैं कल आइए. मतलब ऐसा एक कंट्री है जो कि हर चीज़ डिले में चलता है. जैसे आप जापान को लीजिए, वो नहीं, आज ही होना चाहिए. तो आर्मी एक ऐसी चीज़ है कि नहीं, आज ही होना चाहिए. आपकी समस्या है तो आज ही उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. हम लोग थोड़ा एक कल्चर, जब मैं आर्मी से सिविल में आया तो थोड़ा कल्चर का डिफरेंस तो होता है. बट चूंकि मैं एज ए डॉक्टर आया, मैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. वहाँ भी पेशेंट थे, यहाँ भी पेशेंट हैं. वहाँ भी लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ भी, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो रूमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी है, वो बहुत कम लोग हैं इस कंट्री में. समझ लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए 50,000 है, तो हैं कुल मिला के 1,000. तो इतनी बड़ी गैप है कि वो हमेशा ही, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं सोचूं कि चलो मैं जाके अपने बगल वाले कमरे में किसी से गपशप लगा सकूं. कोई टाइम ही नहीं है जरा भी. तो पहली तो मेरी स्पेशलिटी ऐसी है. इसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों आर्मी और सिविल में नहीं है. दो तरह की लाइफ जीना पड़ती है हम सब डॉक्टर्स को. एक तो डॉक्टर का काम है भाई डायग्नोस करना. ऐसे पहले तो पढ़ा लिखा होना, उस लेवल तक पढ़ा लिख के बाद डायग्नोस करना, फिर आपको
एक एज ए गुड ह्यूमन बीइंग होना पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि बाकी सोसाइटी कितनी ख़राब हो, बट डॉक्टर से एक्सपेक्ट करता है कि भाई यदि मैं अपने बीवी बच्चों को लाऊं तो अच्छी तरह बात करे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, दोनों ही का एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप घर में पंडित जी को बुलाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि पंडित जी इस तरह से बिहेव करेंगे, ऐसे ही आपको डॉक्टर का है, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग अच्छी तरह से आपको बात करनी पड़ेगी, प्यार से बात करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही नाराज हो, बट आपको आपका जो स्वरूप है वो दूसरा है, मतलब आपको एक वो चीज़, तो वो दोनों चीज़ें आर्मी में और सिविल में, इनफैक्ट आर्मी में और ज़्यादा ही है, बिकॉज आर्मी में बहुत ज़्यादा ठोक बजा के सिखाया जाता है कि आप पेशेंट से किस तरह से रहिए, कितने प्यार से करिए, कितने प्यार से मोहब्बत से, क्योंकि आधी बीमारियां प्यार मोहब्बत से ठीक होती हैं, दवाइयों से ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए यंग डॉक्टर्स को भी कि प्यार मोहब्बत भी बड़ी चीज़। मैं तो अपने पेशेंट तक को बताता हूँ, ख़ास तौर से जितने हस्बैंड्स रहते हैं उनको बताता हूँ, देखिए दवाई तो मैं दे रहा हूँ, बट थोड़ा प्यार मोहब्बत भी करिए अपनी वाइफ से, तब वो ठीक होगी। मेरी स्पेशलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रही, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो रोमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी है उसको लेके बड़ी भ्रांतियाँ थीं। आप भी यदि मुझसे पूछेंगे सर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, तो देखिए आपको मलेरिया के बारे में तो मालूम, मलेरिया क्या है, बट आप क्या सोचते हैं मलेरिया 100 साल पहले किसी को मालूम था मलेरिया कैसे होता है? नहीं मालूम था। टीबी कैसे होता है ये नहीं मालूम था। देखिए 2 VIP की डेथ हुई टीबी से, जब टीबी के बारे में नहीं मालूम था। एक जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ कमला नेहरू, उनकी डेथ हुई टीबी से, क्योंकि टीबी का कोई इलाज नहीं था। इलाज क्यों नहीं था? क्योंकि टीबी के बारे में मालूम नहीं था क्यों होती है। जब किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो उसका इलाज भी नहीं निकलता। ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी डेथ भी इससे हुई। तो इसका मतलब हुआ कि टीबी के बारे में जब रिसर्च हुई तो उन्होंने पता लगाया भाई तो एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया के खिलाफ कोई दवाई बनाया जाए ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने मलेरिया के लिए, तो मलेरिया का जो कीटाणु है, मतलब मलेरिया 5000 साल से रामचंद्र जी के ज़माने से, तो किसी को मालूम नहीं था मलेरिया क्यों होता है। तब पता लगाया उसने, एक उसका नाम था मेजर रोनाल्ड रॉस, आर्मी का डॉक्टर था, वो कलकत्ता आया पोस्टिंग, तो लंदन से कलकत्ता भेज दिया। तो कोई लंदन से कलकत्ता नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ तो हर जगह शासन कर रहे थे, पर वो कोई जाना चाहता था फिलीपींस, कोई जाना चाहता अच्छी जगह, तो उसको ट्रॉपिक्स माना जाता था। ट्रॉपिक्स मतलब बड़ा गर्मी है, ये है वो है, बट उसको पनिशमेंट की तरह भेज दिया यहाँ। तो उसने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लेके इस रिसर्च करना शुरू की, और उसने बताया कि भाई मलेरिया एक इससे होता है, इसको मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। उसको नोबेल प्राइज़ मिला, he was an army officer, he got a Nobel Prize for that. So इनको बोलते हैं इन्फेक्टिव डिजीजेस, माने जो बीमारियां इन्फेक्शन से होती हैं। तो क्या वो उस बाढ़ सी आ गई, फिर किसी ने निमोनिया का बैक्टीरिया खोजा, किसी ने कॉलरा का बैक्टीरिया खोजा, तो लोगों ने सोचा चलो हमने तो विजय प्राप्त कर ली। तभी एलोपैथी का इतना नाम हुआ, तभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बाकी सब पीछे रह गए। क्यों? कि वो तो ये बोलते थे कि खराब हवा से होता है, या वित्त से बात पित्त की खराबी से होता है। उन्होंने कहा बात पित्त की खराबी से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो एलोपैथी का नाम बहुत सडनली बढ़ गया। बट सडनली धीरे धीरे पता लगाया कि यार 100 में से सिर्फ 10 बीमारियां हैं या 20 बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं, बाकी 80 बीमारियों के बारे में पता ही नहीं कि कैंसर क्यों हो जाता है, कुछ और बीमारी। फिर एक कंसेप्ट आया जिसको कि कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। उनका हर चीज़ इन्फेक्शन से नहीं होती। जैसे मैं बताऊं, मेरी स्पेशलिटी है रोमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी। रोमेटोलॉजी में जोड़ों की बीमारी, तो जोड़ों की बीमारियां जनरली आपको विश्वास नहीं होगा कि ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं वो यंग लोगों को होती हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि जोड़ों की बीमारियां तो बुढ़ों को होती होंगी, यंग लोगों की। मेरी ओपीडी में आप आएंगे, समझ लो मेरी ओपीडी में 30 पेशेंट आते हैं या 100 पेशेंट आते हैं, तो 100 में से 90 यंग मेल्स या यंग फीमेल्स होंगे, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारियां किस में होती हैं ज़्यादा? यंग लोगों में। जबकि इन्फेक्शन है वो 2 एक्सट्रीम एज में होता है, या तो बच्चों को होगा, तो ये बच्चों को बार बार लूज मोशन हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे घूमते रहते हैं उनकी माँ लेके, या फिर बुढ़ों को बिल्कुल 80-90 साल वालों। तो बीच का जो पीरियड है 20 साल से लेकर 40 साल, उसमें सबसे ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा फीमेल्स को होती हैं। तो यदि मेरे ओपीडी में आप आएंगे तो 100 में से करीब 80
पेशेंट फीमेल होंगे। तो एक तो ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में बड़ी रिसर्च की गई कि यार ये बीमारियाँ क्या हैं। पता पड़ा कि यार इनमें ना तो कोई बैक्टीरिया है ना वायरस है। बहुत सारी रिसर्च की गई, ना बैक्टीरिया के बारे में पता चला ना वायरस के बारे में पता चला। तो ये तो उनको पता चल गया कि ना तो ये इन्फेक्शन से नहीं है, किसी और चीज़ से है। वो क्या चीज़ है इसके ऊपर रिसर्च की गई। तो उनको कुछ एविडेंस ऐसे मिले कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। अच्छा। तो आपकी खुद की सेना आप ही को गोली मारने लगे, जैसे मिसेस गांधी को उनके गार्ड ने मार दिया था। तो ऐसे एविडेंस वैज्ञानिकों को मिले कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो उन्होंने उसका नाम दिया ऑटो इम्यून डिजीजेस। आपका इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में ही कोई चीज़ काम कर रही है, ऐसा नाम उन्होंने रखा। वो नाम आज भी पॉपुलर है। तो दो तरह की बीमारियां मैंने आपको बताई, एक इन्फेक्शन से और एक इम्यून डिस्टर्बेंस। बट यू सेड कि मोस्टली ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जी हाँ। व्हाई रीजन? हाँ, ये रीज़न आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। मालूम नहीं है, आज भी कई थ्योरीज है। जब किसी चीज़ की बहुत थ्योरीज होती हैं, इसका मतलब एक थ्योरी मालूम नहीं है अच्छी तरह से। लोग कहते हैं कई बार कि हार्मोनल से होता है, कई बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम से होता है, बट किसी को नहीं मालूम कि फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होती है। अच्छा जी हाँ सर, एक आम जनता वाली सवाल पूछूंगा। आपने ऑटो इम्यूनिटी वाले बात कर रहे थे। लोग कहते हैं कि आप एकदम जो लो मिडिल क्लास है, जो रास्ते में सोते हैं, दिन बिताते हैं, इवन कोविड में भी ये चीज़ चला था, दे वर नॉट अफेक्टेड, बट पीपल हु आर रिच विथ ऑल द फैसिलिटीज वर मोर अफेक्टेड। इसका रीज़न क्या है? वाई इट्स कॉल्ड कि दे आर मोर इम्यून बट दे आर नॉट इम्यून? एक्चुअली क्या है, इम्यून सिस्टम है क्या? कोई इम्यून सिस्टम एक मतलब कोई जादू नहीं है। बेसिकली आपके शरीर में कुछ सेल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। वो उसको इम्यून सिस्टम माना गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपके शरीर में एक होता है एनाटॉमी ऑफ इम्यून सिस्टम, एक होता है फिजियोलॉजी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ बचा रही है आपको, चलिए ऊपर से चलते हैं। जैसे आपको आपकी पूरी बॉडी में स्किन लगी हुई है ऊपर, यदि स्किन ना हो तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने लगेंगे। तो ईश्वर ने स्किन का कवर चढ़ाया हुआ है आपको। हम ऑर्गन मानते हैं कि हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है। हम कभी नहीं सोचते कि स्किन भी बहुत ऑर्गन है जो आपको बचा रहा है इन्फेक्शन से, कवरिंग है। स्किन में हजारों चीजें हो रही हैं अंदर। आपको 50 बैक्टीरिया वायरसेस आपके चारों तरफ घूम रहे हैं जो दिख नहीं रहे हैं आपको, वो आपको रोज अटैक कर रहे हैं। बट स्किन के अंदर कई ऐसी चीजें बनाई हैं ईश्वर ने कि सिर्फ ये सिंपल कवरिंग नहीं है, इसमें सेल्स हैं, इसमें आपका जो पसीना है उसके अंदर कई ऐसे तत्व हैं, कई चीज़ें हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कभी स्किन को डैमेज हो जाए तो आपको मरने के चांस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बर्न। जब बर्न होता है तो आदमी क्यों मर जाता है बताइए? क्योंकि आपकी स्किन जो डैमेज हो गई है उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो जनरली स्किन जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न होता है ना, 40% बर्न हो गया, तो पेशेंट बिल्कुल बात करता रहता है डॉक्टरों से, बात करते करते मर जाता है। क्योंकि इन्फेक्शन का एक पंडारा बॉक्स खुल गया है, एक विंडो खुल गई है। तो एक इम्यून सिस्टम स्किन है, एक इम्यून सिस्टम जैसे नोज है आपकी। अब नोज के अंदर बाल है, बाल क्यों बनाए? ताकि बैक्टीरिया ना घुसे, वो भी एक इम्यून सिस्टम है। ये एनाटॉमी है। स्लाइवा, मुंह में आप जो मुंह में स्लाइवा है वो भी एक इम्यून सिस्टम है। ऐसा एक इसे को बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब फिजियोलॉजी कैसे, आपके अंदर सेल्स हैं, वो कहते हैं ना, एक लाल सेल होते हैं, एक वाइट सेल होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। फिर डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे प्रकार हैं, उनको बोलते हैं टी सेल, बी सेल। ये सब जो सेल्स हैं इनके अपने अलग अलग काम है। लाल जो रेड सेल है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, जो डब्ल्यूबीसी वो डिफेंस का काम करता है। जैसे आपका एक किले के सैनिक, जैसे आपको समझ लीजिए मैं एक आपको पानी पिलाता हूँ जिसमें बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया जैसे ही गया, ये आपको मैं पिन जैसे एक इसमें बैक्टीरिया लगा है, मैंने आपको एक लगा दिया ऐसा, तो जैसे ही इसमें बैक्टीरिया जाता है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन में कि भाई एक बैक्टीरिया जो बाहर का है वो आ गया है। फिर इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो ब्रेन उनको भेज देता है लड़ने के लिए, ये वाइट सेल्स वगैरह को, तो वो वहाँ जाते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको मार देते हैं। ये और कुछ और सेल्स होते हैं, बी सेल्स वगैरह, वो एक एंटीबॉडीज बनाते हैं,
वो एंटीबॉडीज उस सेल उसको मार देते हैं, बैक्टीरिया को। इस तरह से ये इम्यून सिस्टम काम करता है। बट कभी कभी क्या होता है, यही जो सेल्स हैं अपने बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। वो क्यों होता है? शायद इसलिए होता है कि आपके जो सेल्स हैं आपके खुद के, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसको पहचानने में गलती करने लगता है इम्यून सिस्टम। वो कहता है ये सेल्फ नहीं है, ये नॉन सेल्फ है। तो नॉन सेल्फ के ऊपर अटैक करता है। तो आप जब वो अटैक करता है तो आपको भी नुकसान होता है उससे। तो आपको फिर माना इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। क्यों? कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहीं भी अटैक कर सकती हैं। आपके बालों में अटैक करेंगे तो बाल झड़ने लगेंगे, आपकी स्किन में अटैक करेंगे तो स्किन लाल होने लगेगी, आपके मुंह में अटैक करेंगे मुंह में छाले होने लगेंगे, आपके थायराइड में अटैक करेंगे आपको थायराइड की बीमारी हो जाएगी, लंग्स में अटैक करेंगे आपको लंग्स की बीमारी हो जाएगी। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं दे आर मल्टी सिस्टम डिजीजेस। मल्टी सिस्टम का मतलब हार्ट की बीमारी तो हार्ट में होती है, बट ऑटो इम्यून डिजीज ऊपर से लेके नीचे तक हो सकता है। इसलिए जब मरीज आएगा आपके पास तो तरह तरह के सिम्टम बोलेगा। कोई बोलेगा सर मेरे बाल झड़ते हैं, कोई बोलता सर मेरे जोड़ में दर्द होता है, कोई बोलता मुझे थायराइड है। तो एक मेरे बॉस थे, वो कहा करते यार तुम कौन सी स्पेशलिटी कर लिया है भाई? डॉक्टर हार्ट का हो सकता है, आँख का हो सकता है, नाक का हो सकता है, ये तुम्हारी कौन सी स्पेशलिटी है? किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के मुंह में छाले हैं, किसी को। मैंने कहा सर ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स है। इम्यून सिस्टम कहाँ अटैक कर रहा है? यदि आपकी आँख में अटैक कर रहा है तो आपकी आँख तो लाल हो रही है, आप सोचोगे मुझे तो आँख की बीमारी है, तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, बट वो कहेगा नहीं यार ये ऑटोइम्यून बीमारी है, आप उनके पास जाइए, ये है तो आई में हो रही है। सो इस तरह से ये डिफरेंस करते हैं। फिर इनके नॉमेनक्लेचर रखे गए। नाम कैसे? ये बताइए इस कमरे में 100 सांप आ जाएं, तो उनके किसी ने, हम तो बोलेंगे सांप निकल आया, बट सांपों के एक्सपर्ट को बुलाइए तो बोलेगा नहीं ये कोबरा है, इसको मत छूना मर जाओगे, ये कुछ भी नहीं है पानी का सांप, इसको गले में लटका सकते हैं, ये क्रेट है इसको मत छूना। तो ऐसे ही बीमारियों के नाम रखे गए, ये है, ये है, ये। तो हमारी बीमारियों में 2-4 बीमारियां हैं। एक कहलाता है गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग लेडीज़ की बीमारी है। बहुत सारे छोटे जोड़ और बड़े जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी मेन खासियत यह है कि जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसका सुबह सुबह उठेगा तो अकड़ जाएगा। बाकी दुनिया सुबह सुबह सबसे एक्टिव है, ये बिल्कुल अकड़ जाएगा। उसी समय सब जगह घर में काम होता है, तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, उठ नहीं पाते आप, क्योंकि आपको सब जोड़ सूजो है सुबह। इनफैक्ट आप चलोगे फिरोगे तो ठीक हो जाता है, बट बाद में, और ये बीमारी लगातार जिंदगी भर रहती है। इस पर रिसर्च हुई तब दवाइयाँ भी आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आ गई। एक बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको गठिया बोलते हैं। एक बीमारी बोलते हैं कमर का गठिया, वो मेल्स को होता है कि आपके कमर में दर्द हो रहा है। कब हो रहा है? जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो होगा। तो सुबह सुबह उठे कमर का दर्द, चलेंगे फिरेंगे तो आप ठीक हो जाते हैं। तो ये चलता रहता, पकड़ में नहीं आता, बाद में पता पड़ता है जब वो झुकने लगता है। तो स्पाइन में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका क्या वुड विल बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट एट होम? देखिए क्या है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो मैंने बता दिया गठिया, और एक कमर का गठिया जो कि मेल्स में होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी। हम लोग मैं बोलता हूँ स्पाइनल आर्थराइटिस, माना गठिया और कमर का। सर ये वही है जो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं? करेक्ट। तो ये टर्म्स लूजली यूज होते हैं। ऐसी 100 बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज, बट ये ज़्यादा मोटी बीमारी जो बता रहा हूँ, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और तीसरी बीमारी होती है लूपस SLE। इन सब के अलग अलग चरित्र हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज अब आज पूर्णतः डायबिटीज़ का इलाज होता है, ऐसे इनका इलाज होता है। ओनली थिंग मेरी यह मैसेज है कि यदि आप कोई ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या जोड़ों की बीमारियां हैं तो आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को खोजिए। रूमेटोलॉजिस्ट किसको खोज कहते हैं? जिसने आप अपने सब्जेक्ट में रूमेटोलॉजी पढ़ा हो। अब जैसे मैंने DM किया है, एक और डिग्री होती है DNB। तो यदि किसी ने रूमेटोलॉजिस्ट मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है लोग ऐसे भी रूमेटोलॉजिस्ट लिख लेते हैं कमर्शियल रीजन से, जैसे कहते हैं ना, आप समझ लीजिए मैं लिख लूँ गायनोकोलॉजिस्ट, तो मुझे कोई चेक कर रहा है क्या इस कंट्री में? तो चेक करिए कि वो पढ़ा लिखा रूमेटोलॉजिस्ट है, तो उसको आप दिखाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बट सर मेरे मॉम को ये चीज़ है, तो जी हाँ, उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स दिखाए। तो एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे पुराने ज़माने में ये सब कम होता था,
क्योंकि घर के काम भी ऐसे होते थे, वो एक वर्कआउट हो जाता था। शायद आज के जनरेशन में वो नहीं होता वास्तव में। वेल ये चीज़ें बहुत, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। एक ज़माने में HIV के बारे में जब अमेरिकन काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो बड़े साधु संत हैं, हमारे तो HIV नहीं होता। फिर धीरे धीरे पता पड़ा नहीं यार, हमारे यहाँ HIV थोड़ा बहुत 1-2 पेशेंट होता है। फिर पता पड़ा 1-2 नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारा होता है। फिर पता पड़ा नहीं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सो व्हाट आई मीन कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं। यदि आपने वो चीज़ देखी नहीं है तो आपको, आपकी ब्रेन को नहीं मालूम तो आपकी आंख भी नहीं देख सकती। तो ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में शायद हमें नहीं मालूम था। जैसे हम पहले कहते थे कैंसर, यार कैंसर इंडिया में कहाँ होता है, वो तो अमेरिका में होता है। आप तो देखिए, तो इट इज़, आपको पहले आपके ब्रेन को सीखना पड़ेगा कि ऑटोइम्यून बीमारी के हमेशा से बीमारियां रही हैं। मेरी ख्याल से ये बीमारी रामचंद्र जी के ज़माने से सब बीमारियां थी, बट बीमारियों के डिटेक्शन सिस्टम और उनको कि भाई ये बीमारी ये है, हाँ इसको हम मोटे मोटे, जैसे मैं आपको एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ कि एक ज़माने में बुखार था तो ये थोड़ी मालूम था कि ये कॉलरा है, ये टाइफाइड है, ये हम तो कहते थे यार जूड़ी ताप हो गया। बाद में विज्ञान ने बताया कि जूड़ी ताप के 100 प्रकार होते हैं। मलेरिया अलग होता है, उसके लक्षण अलग होते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। कॉलरा के अलग होता है, कैंसर से जो बुखार आता है वो अलग किस्म का होता है, टाइफाइड अलग होता है। ऐसे ही जोड़ों की बीमारी, जोड़ों की बीमारियां का भाई हम लोग कहते थे यार इसको ना गठिया हो गया, और गठिया के 100 प्रकार होते हैं। वो इस तरह से विज्ञान बढ़ेगा। तो आज जो विज्ञान है कल के दिन और बढ़ेगा, कल के दिन और बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं कि यार वो तो एक ज़माने में, पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक में सबका इलाज था। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि ये पद्धतियाँ अलग नहीं हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। और ये एक ज़माने में लालटेन चलती थी तब लाइट जलती थी, आजकल बिजली जलती है। ऐसे ही ये विज्ञान है। एक ज़माने में थोड़ा कम डेवलप था, हम ये सोचा करते थे कि हर बीमारी वात पित्त से होती है। बाद में विज्ञान ने सिद्ध किया कि नहीं, वो कंसेप्ट ही गलत है। हर बीमारी वात पित्त से नहीं होती, कुछ इन्फेक्शन से होती है, कोई इम्यून सिस्टम से होती है। वो बहुत बहुत गलत होगी कि हम कहें नहीं वो हमारे पूर्वज चूँकि आयुर्वेदिक से इलाज करते थे तो हम वहीं जाएंगे। जैसे चाइनीज़ करते थे किससे, एक्यूपंक्चर से। बाद में पता पड़ा नहीं, ऐसी फालतू की चीज़ें एक्यूपंक्चर को, माना जिसे कहते हैं कि यूनान पद्धति से करते थे। इन्हीं के ऊपर ही तो मॉडर्न साइंस डेवलप हुई है। जैसे एक ज़माने में कबूतर से मैसेज भेजते थे, आजकल आप फ़ोन से भेजते हैं, कल के दिन कुछ और आ जाएगा। तो उसको लेके मत बैठे रहिए, ये बड़ा गलत चीज़ होगा यदि हम कहें कि नहीं हमारे ज़माने में, चूँकि एक ज़माने में हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद निकाला था तो वही सब कुछ है। होगा, कोई छोटी मोटी चीज़ें होंगी उस समय, और हो सकता है कि उस समय के लिए वो ठीक रहा हो साइंस, बट अभी वो उसके आगे बहुत विज्ञान बढ़ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, आज के ज़माने में और आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेकर हर जगह वायरल हो रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। लोग कहते हैं कि जो सारी बीमारियां वो दिमाग में है, शरीर में बाद में आता है। इसका सर मैं एक चीज़ और से कनेक्ट करूँगा। आई हैव सीन पीपल इन द फोर्सेस, उनके अडेप्टिबिलिटी इतना होता है, जैसे हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में भी वर वर्किंग फॉर 14 आवर्स बट वी आर सेइंग हमें तो टाइम नहीं मिलता, लाइफस्टाइल ऐसा है। बट इफ़ यू सीन द फोर्सेस, उनका भी शायद इससे ज़्यादा खतरनाक वर्क होता है, बट वो एक्सेप्टेंस होती है उनमें। What is the main आपने reason? बहुत बड़ा चीज़ बोला, एक चीज़ जो कि मैं भूल भी गया था क्योंकि 9 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, अडॉप्टेबिलिटी। देखिए मैं एक बहुत बड़ी पद से रिटायर हुआ, बट आज एक छोटे से कमरे में बैठा हूँ, ये अडैप्टेबिलिटी है। हो सकता है कोई और होता तो कहता है यार मैंने नहीं काम करना है यहाँ, मैं अपने घर में बैठूँगा। नहीं, मुझे मालूम है कि देखिए मैं कुर्सी से नहीं जुड़ा हूँ, वो कुर्सी के कारण मुझे ऑफिस मिला हुआ था। वो कुर्सी जब मैं रिटायर हो गया तो मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ भाई, जो मुझे नौकरी दी जाएगी तो मैं वहाँ करूँगा। तो आर्मी के पास सबसे बड़ी शक्ति जो है, आर्मी के पास जो आपने खुद ने बोला, एडॉप्टेबिलिटी। उसको ये कभी नहीं लगता कि मैं 10 घंटे काम करूँगा, 20 घंटे काम करूँ, क्योंकि वो एक उसमें ढल चुका है कि ये, और एक जिसे कहते हैं लॉयल्टी टू द वर्क, कि सक्सेस तो मिलेगी आपको यदि आप लॉयल्टी टू द है, धीरे धीरे कोई ना कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यार ये आदमी अच्छा है, ये आदमी इतना अच्छा नहीं है। आप कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरा बॉस मुझको जानता भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशबू है ना, वो धीरे धीरे फैलती है। ये मैं आपको, चूँकि मैं इस पद से रिटायर हुआ तो मुझे धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो शॉर्टकट की सक्सेस है
वो कभी कभी जल्दी मिल जाती है, बट उसको बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं। मतलब मेरे जितने संगी साथी थे जो शॉर्टकट में काम करते थे, उससे ज़्यादा सक्सेस मुझे मिली, ये मैं सोचता हूँ। तो डेफिनेटली मतलब जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि यार ये शॉर्ट सर्विस या क्या कौन सा योजना है वो अग्निवीर वो खराब है। नहीं, यदि इस देश को हमें बहुत बड़ा बेस बनाना है अच्छे नागरिकों का, तो हमको और ज़्यादा बल्कि उसमें रखना चाहिए, बहुत बड़ा बेस कि आप ट्रेनिंग लीजिए और सोसाइटी में जाइए, ट्रेनिंग लीजिए सोसाइटी में जाइए। उसी में से जो लोग काम करना चाहते हैं परमानेंटली, उनका एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन होगा, आप उसमें आ जाइए, करिए। वैसे भी तो आपको नहीं मिल रहा था, तो नॉर्मल पोस्ट समझ लीजिए एक ज़माने में हमारे पास 10,000 थी, तो हम आपको 1,00,000 पोस्ट ऑफर करते हैं। वो आप 5 साल आर्मी में काम कीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा पैसा भी हो जाएगा, थोड़ी आपको जीने की स्टाइल भी आ जाएगी, क्या है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ईमानदारी से भी काम किया जा सकता है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। What do you believe, hard work or smart work? बोथ, Okay. ए आइडियल कॉम्बिनेशन। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हार्ड काम करते रहें। जैसे मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, अब मैं किसी को बता ही नहीं रहा मुझे नहीं गाना भैया, मुझे तो कैसे पता चलेगा मैं गाना गाता हूँ? तो स्मार्टली मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी गाना गाता हूँ, मैं आप सुन लीजिए। तो यदि मैं बहुत ही शाई रहूँगा तो फिर मुझे तो दोनों चीज़ चाहिए। सर उसका जवाब मुझे मैं वो पूछा था, व्हाट द मेंटल हेल्थ, जो हम मेंटल हेल्थ, देखिए वो हमारे यहाँ एक कहावत पहले से, कोई मेंटल हेल्थ कोई वेस्टर्न वर्ल्ड माना वर्ड होगा, बट हमारे यहाँ तो वर्ड थे ही ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि यदि आप खुश हैं तो सब चीज़ खुश है। तो कोई यदि आदमी खुश है, पर खुशी क्या कहलाती है? कुछ हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं, उनके नाम दिए वैज्ञानिकों ने, अब तो पता भी लगा लिया, कोई सीरोटोनिन कोई कुछ, कि यदि आप खुश हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी आर्थराइटिस ही है। जब भी डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, तो इन लोगों को बहुत जॉइंट पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं डॉक्टरों के पास, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। कभी कभी हम लोग भी मिस करते हैं कि ये सही में जेन्युइन बीमारी है कि डिप्रेशन के कारण है। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कई बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। ये अभी से नहीं, ये विज्ञान मेरे ख्याल से बहुत दिनों से मालूम है। देखिए इंडियन जो हमारे पुराने लोग थे, जिसको आप चाहे आयुर्वेदिक बोलिए चाहे कुछ बोलिए, ये जो ब्रेन का पोर्शन, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, इसको लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था कि यदि आप कहते हैं ना कि वो मैं वो करता हूँ क्या साधना, कोई कहता है मैं योगा करता हूँ, वो बेसिकली टू कंट्रोल दिस ये जो ब्रेन का पोर्शन है सामने वाला, जिसे कहते हैं ना इसका माथा बड़ा है वो, तो ये जो पोर्शन है ये सब चीज़ डिसाइड करता है। इमोशन, मतलब कई जो चीज़ें हैं वो ये जो पोर्शन ब्रेन का वो डिसाइड करता है। आपका एंगर, आपका इमोशंस, आपके वो, इस पे यदि कंट्रोल हम कर सकें तो हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों को मालूम था अच्छी चीज़, और उसी के ऊपर जो मॉडर्न साइकेट्री डेवलप भी हुई है, और हम लोग तो रोज़ ही देखते हैं। अभी मेरे पास कोई पेशेंट जो अंदर बैठे थे, मुझे मालूम था कि ये कई चीज़ें इनके ब्रेन से जुड़ी हुई, मानसिक स्वास्थ्य से, और उसको मेरी ख्याल से जो बहुत चीज़ें, प्रेयर है, फेथ है, आपका धर्म है, वो ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है आपके ब्रेन को। आप ही को तो बताया गया कौन चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ बुरी है। सोसाइटी में कैसे डिसाइड हो कि अच्छी चीज़ बुरी चीज़ क्या है? तो आप अपने स्कूल में सीखते हो, माँ बाप से सीखते हो, अपने प्रीस्ट से सीखते हो, गुरुओं से सीखते हो कि भाई ये अच्छा है बुरा है। हम लोग आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, हम आइडियल तो अच्छे नहीं हो सकते, बट हमें ये जरूर मालूम कि यदि मैं तुम्हारी चोरी कर रहा हूँ तो ये चोरी करना खराब है। यदि मेरे बिना चोरी के मेरा काम चल सकता है तो मैं जरूर करूँगा, वो मुझे मालूम वो चीज़ अच्छी है। तो जब आप बिना चोरी करके पैसे कमाएंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। यदि आप चोरी करके कमाएंगे तो आपको निसंदेह ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कई तरह की बीमारी, क्यों आप स्ट्रेस में रहोगे। आपको ये सिखाया गया कि ये गलत है, तो जब आपको ये मालूम ये गलत है तो आप बहुत परेशान हो। वो आपको कभी भी जिसे कहते फलेगा नहीं। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि यार ऐसा पैसा फलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं सोसाइटी में,
अच्छा ही रहेगी, चाहे वो रामचंद्र जी के ज़माने में हो, चाहे आज हो, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, चाहे किसी धर्म में हो। अच्छा ही है, बुरा ही है। अच्छा काम अच्छा ही कहलाएगा, बुरा काम बुरा ही कहलाएगा। कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि ऐसा जो खराब काम को अच्छा कहता हो। कोई भी धर्म, कोई बता दीजिए, एक सिंगल चीज़ बता दीजिए, ये वाला। तो यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कई बीमारियों पे आप विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। First of all, thank you so much, sir. धन्यवाद। And थैंक्स। a self-obsessed question last. You got an experience of so many years. Defense पे भी man management, team management in the senior most. आज in this profession, जब कोई patient आपके सामने आते हैं, I know being a doctor, you will do a study. उनको देख के कि क्या हो रहा है उनके साथ, mental चीज़ें क्या हो रहा है, फिर आप सुनते हो. What will be your judgment on me, if any experience? It will be a feedback for me. You are a sincere person. Probably you gave me time. You came in time. I told you also that you have to go through this security and all, but you still came. It means you are sincere to your job commitment. Though it's a short association, I can't. But that is whatever short association is there. You are committed to your job. So keep doing that. All the best. Thank you, sir. This is when I retired actually. Okay, he called me for the tea. Okay, exclusive, me and my wife for the cup of tea with the president. कितनी बड़ी चीज़ है, मैं सोचता हूँ अभी, पहले नहीं सोचा करता था ये. And this is when I went to Kazakhstan to open a hospital. Okay, for them. So this is the president of Kazakhstan. This is the foreign secretary, Mr. Bisaria. ये वाले. ये आर्मी चीफ थे उस समय. ये वाला. ये जब I became the highest director general, DG. So ये भूटान का है. I was posted in Bhutan also. I forgot. I served with the present king's father. Oh. And this is when I became director general. And this is the president house, my family. When I got Param Vishisht Seva Medal, PVSM. And this is that photograph. This is the highest peacetime award of Indian Army. So this is the highest award of the Indian Army at the peacetime. मेरे को तो लड़ाई के लिए तो नहीं मिल सकता, but Param Vishisht Seva Medal. This is when our Prime Minister Modi ji in 2015 he came to our hospital. And this is Army Chief, Navy Chief, and Defense Secretary. This is me. So that I conducted him.